Class, good morning to all. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग किसने बोली थी? अजय ने? यस मैम। अजय नहाया वाया है कि ऐसे बेड पे ही अभी नहीं मैम, तैयार हूँ। तैयार है? क्यों, क्या हुआ? आवाज बच्चे ऐसे लग रही थी जैसे अभी भी सो के उठा है और जस्ट बेड पे ही लेक्चर में लग रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ओके, टुडे इज 24। ओके, आयुष रोल नंबर 1। अभिजीत रोल नंबर 2। Present, ma'am. अजय रोल नंबर 3। प्रेजेंट मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। रोल नंबर 4 अजीत। जिसका रोल नंबर बच्चे आने वाला हो बी क्विक, साथ के साथ ही अपना माइक ऑन कर लिया करो। रोल नंबर 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, 10, 11, 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 15, 16, 17, 18. Present, ma'am. Okay, Dinesh present. Yes, ma'am. 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, 39, Present, ma'am. 41, 41, Nitika, 44, 46, 47, हाँ जी 46, रणवीर 47, 48 रिया, Present, ma'am. 49 रोहित, 50 सागर, 51 साहिल, Present, ma'am. 52 साहिल कपिला, 53 संचित, 54 सरबजीत, 55 स्नेहा, Present, ma'am. 55 स्नेहा प्रेजेंट, 57 Yes, ma'am. Present. Present, ma'am. ओके 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 बच्चे, 57 सुबह, 58 Present, ma'am. 59 60 Present, ma'am. 62 Present, ma'am. 63 okay electronics 301 Present, ma'am. 303 4 Yes, ma'am. सत श्री अकाल
306, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 308, 309, Present, ma'am. Ravi Kant, 310, 312, Shivam Soni. Present, ma'am. ओके, कोई स्टूडेंट जो बाद में एंटर हुआ और अटेंडेंस नहीं बोली? Ma'am, 550. 544, ma'am. 524. 544, Yes, ma'am. 524. 550. 50 सागर है, रोल नंबर 50 प्रेजेंट है, Ma'am, 515. ओके 24 एंड 15 और Yes, कोई? ma'am. और कोई? 44, ma'am. 44, Yes, ma'am. ओके जी, बस जी, हाँ जी मैम. ओके। सबसे पहले असाइनमेंट दे दी मैंने, No, ma'am. ओके, राइट डाउन योर असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2, given date is today. Today is 24th. Okay, summation date is, एक हफ्ते का टाइम पीरियड रख दें, 31 रख दें। Okay. Yes, ma'am. ओके, मंडे 31, write down question number 1. Explain half wave rectifier. Half wave rectifier with its diagram. Next question number 2. Explain Zener breakdown. जो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. Zener diode. मैम सेकंड दोबारा बोलना मैम. Explain Zener diode. Sorry, explain Zener breakdown. Explain Zener breakdown. मैम 2 क्वेश्चन है, एक एक्सप्लेन जीनर वो नहीं नहीं बच्चे, डायोड और नहीं नहीं Zener diode नहीं है, सिर्फ Zener breakdown है. क्वेश्चन Okay. नंबर 2 वो बाय चांस मेरे मुंह से निकल गया. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन Zener breakdown. That is of वो क्या है? 6 marks. Next question number 3. Explain LED with its with its applications. Explain LED with its applications. This is also of 6 marks.
Next, working of a transistor. Working of a transistor with proper circuit diagram. Ten marks. Next, explain different biasing of transistor. Different biasings of transistor. That is of 6 marks. Question number 6. Explain CE, that is common emitter, characteristics, common emitter characteristics of a transistor. Ten marks. डायग्राम हर एक के साथ बनाना है. नेक्स्ट मैम कॉमन एमिटर का कितने मार्क्स? 10 marks. Next, 7th question. What is operating point? Explain selection of operating point with diagram. Explain selection of operating point with diagram. That is of 6 marks. ये वैसे 10 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ऑपरेटिंग पॉइंट का, तो आप मटेरियल 10 मार्क्स का ही बेटर है कि तैयार कर लो. इट डिपेंड्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Explain transistor as an amplifier. या ऐसे स्टार्ट कर लो. What is amplifier? What is amplifier? Explain transistor as an amplifier. रिपीट करना. What is amplifier? Explain transistor as an amplifier. हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है असाइनमेंट बनाने के लिए. ठीक है, हमारे 5 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं. ठीक है, और भाई
शाबाश। सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लेना है, सेवंथ और एट्थ हम लोगों का अगले वाले 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आज हम Okay. करते हैं सीई। हम लोग सी बी कर चुके हैं ना। ओके, हम लोगों ने उस दिन स्टार्ट किया था सीई। ठीक है, अब सीई में हम लोगों ने बात की थी, सेम एक ही चीज है। दोबारा से मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ एक बार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने किट में देखा था कि इस तरफ मिली एम्पियर है और इस तरफ वोल्ट मीटर है। डिपेंड करता है कि इस साइड पे इनपुट हम क्या ले रहे हैं। हम लोगों ने कॉमन क्या लगाया, अब मेरी इनपुट चाहे बेस है चाहे एमिटर है, मुझे उसको निकालना है। मतलब अगर मेरी इनपुट जो है वो एमिटर है तो मुझे आई ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मेरी इनपुट बेस है तो मुझे आई बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों चीजों के लिए मुझे एक करंट और एक वोल्टेज चाहिए। अगर दूसरी तरफ इधर बात करें, ये आउटपुट है मेरे पास, ठीक है, आउटपुट में भी एक मिली एम्पियर और एक वोल्ट मीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर मुझे चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था, अगर इस डायग्राम को देखें, एक चीज कोई भी कॉमन लगा दो, भूल जाओ कि मैं सी बी या सीई कर रही हूँ, एक चीज कॉमन लगा दो, वो चाहे बेस है चाहे वो एमिटर है। जब ये वाला करंट फाइंड आउट करना है, ये वाला करंट, अब ये चाहे आई ई है चाहे ये आई बी है, इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपोजिट साइड दूसरे हिस्सा उधर वाला, इधर वाले हिस्से की, दोनों का कंसेप्ट एक ही कहता है, सी बी का भी कंसेप्ट यही कहता है, सी ई का भी कंसेप्ट यही कहता है। कंफ्यूज किसी में नहीं होना, द कंसेप्ट इज सेम। जब इधर की चीज निकालनी है, ये वाली, ये इनपुट है, जब इनपुट का करंट निकालना है तो ऑपोजिट साइड की जो वोल्टेज है, इसको मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट करना है, इसको मैंने कांस्टेंट करना है। जब इसको कांस्टेंट कर दोगे दूसरी वाली साइड की वोल्टेज को, और ये चीज निकालनी है, तो मुझे पता है ऑब्वियसली मैं अपनी वाली साइड की जो नोब है वो घुमाऊंगी तो मेरा करंट मेरे सामने आएगा। ये इससे इंटरलिंक्ड है, इसको चेंज करते जाओ, इसमें वेरिएशंस लेके आते जाओ, तो ये मेरे सामने आता जाएगा। जिस वाली साइड का, हमेशा इतनी चीज याद रखनी है, जिस वाली साइड का करंट निकालना है, वोल्टेज उसी वाली साइड की घुमानी है, उसी वाली साइड की वोल्टेज में वेरिएशंस लेके आने हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मेरा सपोज ये डायग्राम कॉमन एमिटर का बना है, जो कि हम टॉपिक कर रहे हैं, अगर मैं इसको कॉमन लगा दिया, ये है मेरा बेस और ये है मेरा कलेक्टर। अब मुझे यहाँ पे अगर बेस है तो मुझे आई बी निकालना है। अब जब बेस करंट निकालना है मुझे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस करंट निकालने के लिए कलेक्टर की जो वोल्टेज है, ये वाली जो जंक्शन हो गई, इस जंक्शन का नाम हो गया ई बी जंक्शन, ई बी।
तो मैंने वोल्टेज को नाम दे दिया VEB। जब इधर वाली वोल्टेज है, ये कनेक्शन है EC या CE एज यू विश, CE। तो मैंने इधर वाली जो वोल्ट मीटर है उस वोल्टेज को नाम दे दिया VCE। जब मैंने इधर का ये बेस करंट निकालना है, ये चीज, तो इधर वाली वोल्टेज को मैंने कांस्टेंट कर देना है, ऑपोजिट साइड की वोल्टेज को, और अपनी VEB को चेंज करना है। जब मैं VEB को चेंजेस लेके आऊंगी तो मेरे सामने मेरा IB निकलता जाएगा। अब सेकेंड केस, जब हम लोगों ने आउटपुट निकालनी है, मतलब कि इधर वाला जो करंट है दैट इज C कलेक्टर, दैट मीन्स इट्स IC। ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, दैट इज कलेक्टर करंट। जब कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है, याद रखना है जो चीज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट मीन्स इट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IB। तो इधर का जो मिली एम्पियर है, जो करंट है, उसको कांस्टेंट कर दो और सेट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, से 2 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर एंड सो ऑन। जब इसको कांस्टेंट कर दोगे, अब मैंने एक चीज सिखाई है कि जिधर का करंट निकालना है उधर की ही वोल्ट मीटर में चेंजेस आएंगे, मींस ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर मैंने इस चीज को कांस्टेंट कर दिया तो इधर वाली नोब को मैंने चेंज करना स्टार्ट किया, इधर वाली वोल्टेज में वेरिएशंस लेके आनी स्टार्ट कर दी, तो IC मेरे सामने आता जाएगा। We will find the collector front. क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो चीज हम लोगों ने जब हम लोगों ने पहले वाले डायग्राम में यहाँ पर B को कॉमन लगाया था, यहाँ पर मेरे पास एमिटर था इनपुट और कलेक्टर था आउटपुट। यहाँ पर ये जो लिंक है दिस इज EB, मतलब मेरी वोल्टेज वही की वही रही, चाहे ये B इधर आ गया या E इधर आ गया। ये देखो मेरी वोल्टेज का नाम VEB ही रहा। जब इधर की बात की जाए, अब यहाँ पर जो कॉमन था वो एमिटर है, यहाँ पर जो कॉमन है वो बेस है, तो इधर वाली जो CB वोल्टेज, द कंसेप्ट इज सेम। जब मैंने IE निकालना था, ये चीज, इस चीज को निकालने के लिए इधर वाले वोल्टेज को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ये इसके साथ इंटरलिंक्ड है, इसमें मैंने वेरिएशंस की, इसको मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया और ये मेरे सामने आता गया, इसकी वैल्यू मेरे सामने आ गई। अब दूसरा, जब इधर मुझे IC निकालना था, इसको निकालने के लिए जो चीज मैंने निकाली हुई थी ये वाली, इसको मैंने कर दिया कांस्टेंट, सेम एज इट इज। जो उसका मिली एम्पियर है, से इट्स 2 मिली एम्पियर, इट्स 5 मिली एम्पियर, इट्स 7 मिली एम्पियर एंड सो ऑन। इसको मैंने कांस्टेंट किया, ये इसके साथ इंटरलिंक्ड है, इसकी वोल्टेज में मैंने चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर मेरी वेरिएशन आने स्टार्ट हो गई और ये मेरे सामने आता गया। द कंसेप्ट इज सेम, चाहे इनपुट कुछ भी हो। हुआ क्लियर? कंसेप्ट Yes, ma'am. दोनों का जो बेस है Yes, वो ma'am. दोनों का सेम है, ठीक है। सिर्फ दिक्कत सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, यहाँ पर जो कॉमन है दैट इज बेस, यहाँ पर जो कॉमन है दैट इज एमिटर।
नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन एमिटर। अब हम लोगों ने क्या किया, ये चीज कॉमन जब बेस हम लोगों ने बनाया था तब हम लोगों ने इस तरीके से लगाया, ये बेस था, ये एमिटर था, ये कलेक्टर था, ठीक है, जो सेंटर सिंबल था, बाकी सारा वही का वही रहता। इट डिपेंड्स कि आप लोग पी एन पी बना रहे हो या एन पी एन बना रहे हो, उस हिसाब से मेरी इनपुट बैटरी या आउटपुट बैटरी के कनेक्शंस लगेंगे। अगर मैं एन पी एन बना रही हूँ तो दिस इज एन पी एन, पी से एन की तरफ फ्रंट, वो जो मेरे लास्ट के इधर के और इधर के जो बैटरी के कनेक्शंस है वो इस हिसाब से लगेंगे। लास्ट इधर की बैटरी के कनेक्शंस, जिस बैटरी को हम लोगों ने VEE का नाम दिया क्योंकि वो एमिटर की तरफ लगी है, इधर वाली बैटरी को हम लोगों ने नाम दिया लास्ट में VCC क्योंकि वो कलेक्टर की तरफ लगी है, ठीक है, आउटपुट बैटरी। अब N इज कनेक्टेड टू, जब स्टार्टिंग ये F ये R फॉरवर्ड, P इज कनेक्टेड टू, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड की बैटरी है। बीच में आप लोगों ने मिली एम्पियर या एमीटर लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है, एक रजिस्टर लगाया है, ठीक है, एक एमीटर लग गया, एक वोल्ट मीटर लग गया, एक रजिस्टर लग गया, ये तीन चीजें इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर भी एक एमीटर लग गया, एक वोल्ट मीटर लग गया, एक रजिस्टर लग गया, लेकिन जो लास्ट बैटरी का कनेक्शन है रिवर्स, P is connected to negative and N is connected to positive, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने अपने CE का बनाया है सेम, ठीक है। अब CE में क्या होता है, ये चीज ऐसे बनानी है, इस तरीके से ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता, सीधा सीधा नहीं बनता। जब ऐसे डिवाइड नहीं बनेगा, हाँ जी। अब इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया, ये बेस है, ये एमिटर कॉमन लगा दिया, ये आउटपुट कलेक्टर है, यहाँ पर एक मिली एम्पियर लगा दिया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जिसको नाम VCE दे दिया क्योंकि इधर की जो जंक्शन है दैट इज EC। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन, इट डिपेंड्स कि मैंने NPN लिया है या PNP लिया है। यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन, यहाँ पर बैटरी का नाम दैट इज VCC। अब इस तरफ यहाँ पर एक मिली एम्पियर लगाया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया, EB, इस वोल्ट मीटर को नाम दे दिया EB। आगे एक रजिस्टर लगाया, यहाँ पर मेन बैटरी का कनेक्शन दे दिया। इट डिपेंड्स, मुझे बीच में कहीं नहीं नजर आ रहा कि मैंने PNP लिया है या NPN लिया है, कहीं नजर आ रहा है नहीं ना। जब तक मैं एरो नहीं बनाती तब तक मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। दिस इज P N N,
तो मेरा डायग्राम किसका बना? NPN, सेंटर में एक P है, दिस इज NPN CE ट्रांजिस्टर कनेक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स। P से N की तरफ एरो, ठीक है जी। अब ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। जब मुझे ये चीज निकालनी है, दिस इज IB, ये इनपुट है IB। जब IB निकालना है तो इधर की ऑपोजिट साइड की जो वोल्टेज को कांस्टेंट कर दो, अपनी वाली वोल्टेज को घुमाना स्टार्ट कर दो, सिंपल भाषा में चेंजेस करने स्टार्ट कर दो, और मेरे सामने मेरा जो बेस करंट है, मींस जो मेरे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फाइंड आउट हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा, ये वाला करंट मींस IC कलेक्टर करंट हम लोगों को निकालना है। जब ये निकालना है तो IB जो चीज निकाली हुई है इसको कांस्टेंट कर दो, अपनी वाली जो वोल्टेज है VCE इसको चेंज करना स्टार्ट कर दो, घुमाना स्टार्ट कर दो। जब इसको चेंज करोगे तो IC मतलब कि आउटपुट या we say that कलेक्टर करंट की वैल्यू हम लोगों के सामने आती जाएगी। इस तरीके से हम लोग CE ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स या कनेक्शंस हम लोग अपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। मेथड इज सेम। हुआ क्लियर? यस मैम। कहीं कहीं पे कोई प्रॉब्लम दोनों कंसेप्ट्स में, CB में या CE में? No, ma'am. प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है ना? यस ठीक है, ओके। असाइनमेंट मिल चुकी है, असाइनमेंट हर एक स्टूडेंट ने बना लेनी है, ठीक है। पिछला जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो किसी स्टूडेंट की रखती है या भेजी No. हुई है और मार्क्स No, रिटर्न ma'am. नहीं हुए? नो मैम। चलो ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू। वेलकम मैम।